اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. یہ نیا شہر بن رہا ہے. یہ 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. پھر راوی کو بچایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات پر بریفنگ. وزیر اعظم کا راوی اربن پروجیکٹ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. کہا ہائی کورٹ میں راوی پروجیکٹ کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. راوی اربن سٹی پروجیکٹ 20 ارب ڈالر کا ہے. اب تک 1.5 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آ چکی ہے. کراچی کے لیے ونڈل آئلینڈ پر شہر بنانے کی خواہش تھی، مگر بدقسمتی سے سندھ حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی. I like to move بیٹے میں بھی کرتا ہوں that the bill further to amend the State Bank of اس سے Pakistan پہلے بھی کر رہا ہوں Act 1956, the State Bank of سر Pakistan میں بھی کر رہا ہوں Amendment 2020 to be passed. پوزیشن 42 ٹریجری 43 دیکھ لیں گنے اپنے گنے نجی. دا بل اسٹینڈز پاسڈ. اپوزیشن کے دعوے دھرے رہ گئے. حکومت نے ایک اور بل پاس کرا لیا. سینٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور. اپوزیشن کا شور شرابہ اور احتجاج بیکار گیا. بل کے حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ پڑے. بل پیش کرنے کی تحریک پر حکومت اور اپوزیشن کے ووٹ برابر رہے. چیئرمین کی جانب سے ووٹ حکومت کے حق میں کاسٹ کرنے پر تحریک منظور ہوئی. بل پر ووٹنگ کے دوران اپوزیشن کا ایک ووٹ کم ہو گیا. ANP کے سینیٹر عمر فاروق ایوان سے چلے گئے. حکومتی سینیٹرز زر قابل شیر پر ایوان میں آئیں. اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی سمیت کئی اراکین غیر حاضر رہے. MQM پاکستان، BNP، مینگل اور PK میک کے سینیٹر بھی ایوان میں نہ آئے. تمام جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے آگے ڈھیر ہیں. عدم اعتماد کا خواب دیکھنے والے، اکثریت رکھنے والے ایوان میں بھی ناکام ہو گئے. فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف خود واپس نہیں آ رہے، انہیں لایا جا رہا ہے. نون لیگ کے کچھ دوست نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسد عمر کا اپوزیشن کو شکست سے سبق سیکھنے اور سازش کی حکمت عملی ترک کرنے کا مشورہ. کہا حزب مخالف ان ہاؤس آؤٹ ڈور شرارتیں ترک کر دے. مستعد عناصر کے اشاروں پر چلنے کے بجائے تعمیری راستہ اپنائیں. فروخ حبیب بولے عدم اعتماد کے خواب دیکھنے والی اپوزیشن کے اپنے خلاف ہی عدم اعتماد ہو گیا. اپوزیشن کا حکومت پر چور دروازے سے قانون منظور کرانے کا الزام. لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بولے ایوان میں اپوزیشن نے بھرپور مزاحمت کی. چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ ڈال کر جلد بازی کی. ہاؤس میں ایجنڈا چل رہا تھا، کورم کا مسئلہ بھی نہیں تھا، مگر اجلاس ملتوی کیا گیا. سینیٹر شیری رحمان بولی اربوں روپے کے لیے پاکستان کی خود مختاری نیلام کی گئی. کورونا میں مبتلا اور آکسیجن لگی ممبر کو ایوان لایا گیا. یہ حکومت کو ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں 31ویں شکست ہوئی ہے. 31 ہر بار یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہر بار ان کی یہ سارے دعوے جو ہیں وہ دنام کر کے گر جاتے ہیں. اپوزیشن ہر بار صرف دعوے ہی کرتی ہے، مگر ان کی قسمت میں صرف شکست ہے. شہباز گل کہتے ہیں شرم نہ ہو تو موجیں ہی موجیں. نون لیگ نے بھی اسٹیٹ بینک سے متعلق قانون سازی کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھاگ گئی. عوام کو پتہ ہے یہ چور اور ڈاکو ہیں. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم بولے مشکل فیصلے صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے ضروری تھا. میئر کراچی واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. صحت سے متعلق سہولیات، اختیارات اور ادارے ترمیمی بل کے ذریعے دوبارہ بلدیاتی اداروں کے سپرد کر دیے جائیں گے. جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. تعلیم اور صحت سے متعلق اختیارات اور ادارے دوبارہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دیے جائیں گے. موٹر وہیکل ٹیکس میں سے مقامی حکومت کو حصہ ملے گا. یوسس کو آبادی کے لحاظ سے فنڈز دیے جائیں گے. میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملے گا. سندھ حکومت طلبہ یونین بحال کرے گی. بلدیاتی الیکشن ایکٹ اور ترمیمی بل اسمبلی سے پاس ہونے پر 90 دن میں انتخابات ہوں گے.
जमात इस्लामी को जरदारी माफिया ने धोखा दिया, वफाकी वजीर अली जैदी को यकीन। कहा जरदारी माफिया का बल्दियाती बिल आइन की रूह के बरक्स है। ये माफिया हर चीज पर काबिज होना चाहता है। 14 साल से सिंध में लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। वफाक इन्हें पुलिस को अपनी जाती मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने भी जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर सवाल उठा दिए। बोले LDA और MDA में मेयर का किरदार इंतजामी होगा। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। सिंध का बल्दियाती कानून PSP ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी बात नहीं सुन रही। जनरल वर्कर इजलास बुलाकर आखिरी फैसला करेंगे कि करना क्या है। इस बल्दियाती कानून के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं। 30 जनवरी को आखिरी मार्का होगा। काले कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लिसानी फसादात चाहते हैं ताकि असल मुतालबात पीछे रह जाएं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों में करप्शन बढ़ गई। अगर 18वीं तरमीम आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही तो इसे ख़त्म होना चाहिए। मुल्की मईशत में बेहतरी, GDP 5.3% हो गई। अब समरात नीचे तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से अपील पर ARY नेटवर्क का बड़ा ऐलान। पहले मरहले में ARY नेटवर्क के जिन मुलाज़मीन की तनख्वाह 20,000 रुपये है, उनकी तनख्वाहों में 80% तक इजाफा किया जा रहा है। सदर और CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत और टीम की काविश से इस मकाम पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत में बेहतरी के समरात निचले तबके तक पहुंचाने के लिए ताजरों और बिजनेस कम्युनिटी से तनख्वाहें बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। शुक्रिया सलमान इकबाल। शाबाश ARY। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के ऐलान पर वफाकी वज़रा का ARY नेटवर्क को खिराज तहसीन। फवाद चौधरी बोले ARY की तरह बाकी मीडिया भी जिम्मेदारी का एहसास करे और मुनाफे के मुसव्वरात लोगों तक पहुँचाएँ। असद उमर कहते हैं ARY ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा किया। उम्मीद है दूसरे लोग भी पैरवी करेंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल बोले 100 बड़ी कंपनीज ने 930 अरब और स्टॉक एक्सचेंज ने 260 अरब का मुनाफा कमाया। मीडिया को भी कम से कम 40% का मुनाफा हुआ। ये सिर्फ ARY को मिला कि वज़ीर आज़म की अपील पर तनख्वाहों में इजाफा किया। सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि ARY की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे से अच्छा तासुर जाएगा। भारत का PIA को जयपुर के लिए खुसूसी परवाज की इजाज़त देने से इनकार। PIA की खुसूसी परवाज को कल 160 यात्रियों को लेकर लाहौर से जयपुर जाना था। रमेश कुमार कहते हैं परवाज कोरोना की वजह से मुलतवी हुई। नई तारीख का ऐलान भारत से तहरीरी जवाब आने पर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार उतारने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की ज़ेर सदारत तवील बैठक। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायजा। उस्मान बुस्तार कहते हैं हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए यकसू है। बराह रास्त इलेक्शन से बल्दियात की सियासत में हकीकी तब्दीली रूनुमा होगी। पार्टी से मुखलिस और मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम के फरार का मुकदमा दर्ज। 2 अहलकार गिरफ्तार। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार मुलजिम को निजी गाड़ी में अदालत से जेल ले जा रहे थे। मुलजिम ने टारिक रोड से शॉपिंग करने का कहा। मौका पाकर मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम की शॉपिंग सेंटर से फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पेशावर में कोरोना मस्बत आने की शरह तकरीबन 30% हो गई। कराची में 28, मुजफ्फराबाद में 26, मर्दान में 23, हैदराबाद और लाहौर में 20, गिलगित में 18, इस्लामाबाद और नौशहरा में 17, एबटाबाद में 13, सवाबी में 11 और रावलपिंडी में 11% रही। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की मजमूई शरह 12% रही। मजीद 30 मरीजों का इंतकाल और 8,183 केस रिपोर्ट हुए। PSL सीजन 7 आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। इफ्तिताही मार्के में मुल्तान सुल्तान्स ने मैदान मार लिया। के खिलाफ 7 विकेटों से फतह हासिल की। इमरान ताहिर 3 विकेटें लेकर मैच करार। मुल्तान सुल्तान्स ने 125 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। PSL के संग कराची ता खैबर क्रिकेट के रंग। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL का मेला, रंगों रोशनियों की बहार। स्टेडियम जगमगा उठा। चेयरमैन PCB रमीज राजा की आवाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट की 70 साला तारीख पर डॉक्यूमेंट्री नशर।
मुल्की क्रिकेट हीरोज को भरपूर खिराज तहसीन। 5000 फीट की बुलंदी से पैराग्लाइडर्स स्टेडियम में उतरे। उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी दिखाया गया। आतिफ असलम और आयमा बेग की लाइव परफॉर्मेंस से समा बन गया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PSL 7 का धूम धड़का। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हरलमा पुरजोश में लगा हंसी और कहकहों का तड़का। लेजेंड यूनुस खान कहते हैं कराची किंग्स में अहम लड़कों का ना होना कम रन्स की वजह बना। तनवीर अहमद ने कहा कि पिच ऐसी बनाई जाए कि 160 रन्स बने। टीवी मेज़बान और अदाकारा शाइस्ता लोधी के साथ वसीम बादामी ने खेला मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। शाइस्ता लोधी ने कहा नवाज शरीफ को देखकर जहन में आता है मुझे क्यों निकाला। पेट्रोल की कीमत ना बता सकी। अली मोहम्मद, आगा बहश्ती और कनान चौधरी ने चली सितारों की चाल। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग। मुकाबले में एक दहशत गर्द मारा गया, 10 एहलकार शहीद। फॉलो अप क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। ISPR के मुताबिक हर कीमत पर दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कराची में शारा नूरजहां पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। जाली कागजात बनाने का नेटवर्क पकड़ा गया। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कई प्लॉटों की जाली फाइलें और 200 से ज़ायद सरकारी इदारों की मोहरें बरामद। ACLC का अफसर खिजर हयात भी डकैतों का सहूलतकार है। गिरफ्तार मुल्जिम खलील के इंकशाफात। मुल्जिमान का KDA के कई अफसरान से गठजोड़ का भी इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम सेल की DI खान में कार्रवाई। खातून को ब्लैकमेल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम शहजाद अहमद मुतासरा खातून से पैसों का तकाजा करता था। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई हरीम शाह को महंगी पड़ गई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हरीम शाह के अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए बैंकों को खत लिख दिया। इंटरनेशनल मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $87.07 पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $0.63 कमी के बाद $89.73 पर पहुंच गया। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हुकूमत की कोशिशें कामयाब। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 1 साल मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आखिरी केस 27 जनवरी 2021 को रिपोर्ट हुआ था। Trying to improve football in Pakistan. We're really looking forward to the facilities, stadiums being built, new league being formed, and also 20 of the best Pakistani players moving over to Europe in the coming years. पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों के पास अच्छा मौका है कि वो फुटबॉल में अपना नाम बनाएं। मारूफ बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन कहते हैं यकीन है यहाँ कई हीरे मौजूद हैं, उन्हें तराश कर फुटबॉलर्स बनाएंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2118 दिरहम का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।